Hi super achievers, hope you are working seriously on your careers and your life. आज का वीडियो है फ्यूचरिस्टिक कैरियर डिमांड इन नेक्स्ट 10 years 2026 to 2035. We must know now in which career clusters there are different career clusters. डिमांड कैसे रहेगा, ट्रेंड कैसे रहेगा, स्किल लेवल रिक्वायरमेंट क्या रहेगा, सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ये सब चीज हम लोग देखेंगे. बिकॉज यू नो जो विनिंग फॉर्मूला है इट विल बी डिपेंड अपॉन योर डोमेन नॉलेज. जैसे एक आईटी एक डोमेन है, उसमें जो अदर स्किल्स लेवल है जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, डोमेन नॉलेज प्लस स्किल लेवल क्या है आपका, कितना एक्सपर्टाइज है आप स्किल में, एंड ह्यूमन स्किल्स लाइक कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स प्लस real projects what you have done or what you are doing. This will be the winning formula. Let's see some data. As per World Economic Forum, 170 million jobs will be created. And how many jobs will be replaced? Around 92 million jobs will be replaced by 2030. This data is showing for 2030. So overall if you see 78 million jobs will be created. And जब करियर का बात आता है, you should not ask कि कौन सा डिग्री और क्वालिफिकेशन लेने से, कौन सा स्किल लेने से I will get a job or I will make a best career. It should be which problems will I solve in the near future. कौन सा प्रॉब्लम मैं सॉल्व करने जा रहा हूँ. So this type of question you should ask. अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन सा करियर क्लस्टर में डिमांड कैसे रहेगा, ट्रेंड्स कैसे रहेगा, स्किल लेवल क्या रहेगा एंड सैलरी स्ट्रक्चर क्या रहेगा, तो मेरे साथ बने रहिए 10 से 12 मिनट. इट विल बी ए कंटिन्यूअस वीडियो. टुडे यू विल सी ओनली 3 कैरियर क्लस्टर्स. मेनी ऑफ यू मे बी नोइंग. लेट्स डिस्कस, लेट्स हैव सम क्लैरिटी. सो डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड हिट द बेल आइकन. बाय शेयरिंग यू आर हेल्पिंग अस. And by subscribing, you are helping me. Let's grow together. Let's go to the first career cluster. That is your artificial intelligence, data science, automation. That means it is your IT domain. Best roles क्या रहे? Artificial intelligence engineer, data scientist, machine learning engineer, development ops engineers, automation architect. ये सब एक जनरल में आपको जो डेजिग्नेशन बोल रहा हूँ, जो जॉब रोल्स रहेगा मैं बोल रहा हूँ, देयर विल बी मेनी. यू कैन सर्च इन गूगल ऑल्सो. व्हाई इट विल ग्रो? यू नो, कंपनीज नीड पीपल हु कैन build complete AI system, deploy the system and manage the system. What do you think? One man can do or a team can do? You should know these things. And this demand, ये जो जॉब रोल्स का डिमांड will increase around 33.5% in USA itself. So in proportionally other countries also it will increase. अभी अगर इंडिया का पोजीशन देखेंगे तो डिमांड एंड सप्लाई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो स्किल लेवल चाहिए इंजीनियर्स लोगों का, वो लेवल में गैप काफ़ी ज़्यादा है. डिमांड काफ़ी है लेकिन सप्लाई स्किल लेवल मैन पावर बहुत ही कम है. And it will increase to 1.27 millions by 2027. So what should you do? Start thinking. If I want to build a career in this cluster, definitely in 11-12 you have to take PCM. Go for BTech. If you're not able to crack GMAN, you can go for other engineering colleges, private engineering colleges. Choose a top private engineering college. Or if you're going with मतलब average इंजीनियरिंग कॉलेज, बिल्ड द स्किल्स. स्किल लेवल जो रहेगा जैसे पैथन हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, एसक्यूएल हो गया, देन जनरेशन ऑफ जनरेटिव एआई टूल्स हो गया, ये स्किल लेवल आप डेवलप कीजिए. एंड यू शो द रियल प्रोजेक्ट्स इन गिटहब. गिटहब एक प्लेटफॉर्म है वेयर यू कैन शो योर प्रोजेक्ट्स, स्मॉल प्रोजेक्ट्स लाइक बिल्ड ए स्टूडेंट कैरियर चैटबॉट, देन predictive attendance system of the school, artificial intelligence study planner, small projects, critical projects also you start and show it. Salary level will be around entry level. It will be
4 to 12 lakhs per annum. Here one condition applies. It depends upon which organizations. जैसे आपने गूगल में मिल गया आपको सपोज जॉब और माइक्रोसॉफ्ट में और अमेजन में मिल गया, then definitely the salary level will be 10 to 12 lakhs per annum. बट एक एवरेज कंपनी में देखेंगे लो साइड में इट विल बी 4 to 5 lakhs per annum. सो अगेन यहाँ पर एक क्वेश्चन है, रिस्क कितना है इस करियर मतलब करियर में, करियर क्लस्टर में. रिस्क तो थोड़ा बहुत रहेगा बिकॉज if you know all the things, you can build the system, deploy the system and manage the system. Then nobody can replace you. And you will be upgrading your skill. It is not that you have stopped upgrading your skill. Time to time you have to upgrade your skill. ये हो गया आपका first career cluster. Now let us see which is the second career clusters where the demands will be there. That is cybersecurity or digital trust. जॉब रोल्स आपका क्या रहेगा? इट विल बी साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट, एथिकल हैकर, एसओसी एनालिस्ट, क्लाउड सिक्योरिटी ऑफिसर्स, एआई सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट, प्राइवेसी ऑफिसर्स. एक सिंपल सा मैं आपको बोल रहा हूँ जॉब रोल्स. इट मे चेंज डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी रूल्स. Why the demands will be there? As we are expanding artificial intelligence, clouds, digital systems, we are expanding. There are risks also. Anybody, hacker, they can hack your data and can create problems. And this is one of the fastest growing skills as per World Economic Forum. Definitely, I also agree with that. And it will increase around 28.5% in next 10 years. Global Capability Centers, GCC in India, they also need these skills. These professionals also they need. तो सूटेबल जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम रहेगा. आपको बीटेक इंजीनियरिंग करना पड़ेगा, जनरली कंप्यूटर साइंस और आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन उसमें करना पड़ेगा. देन टेक ए सर्टिफिकेशन फॉर साइबर सिक्योरिटी लाइक एथिकल हैकर. उसका सर्टिफिकेशन है. व्हाइल यू आर इन योर एकेडमिक्स, प्लीज बिल्ड दिस सर्टिफिकेशन, टेक दिस सर्टिफिकेशन एंड इट विल हेल्प यू टू गेट द जॉब्स और मेक द सुटेबल करियर. स्किल लेवल क्या डेवलप करना चाहिए आपको? नेटवर्किंग हो गया, लिनक्स हो गया, क्लाउड बेसिक्स हो गया, पाइथन हो गया, एथिकल हैकिंग हो गया. यू विल टेक द सर्टिफिकेशन. जस्ट आई एम टेलिंग यू. प्रोजेक्ट्स, स्मॉल प्रोजेक्ट्स क्या कर सकते हैं टू शो इन द गिटहब. साइबर सिक्योरिटी वर्कशॉप फॉर स्कूल्स और वेरी बिग कंपनीज, स्मॉल बिजनेसेस. India indicative salary entry level will be 4 to 10 lakhs per annum. Again, this will depend which organizations you are joining. इसमें एक एडवांटेज आपको है कि you can become a freelancer after some experience, 5 to 6 years of experience, you can become a freelancer. Ethical hacker you can become. And once you become a freelancer, it is up to you how much you want to earn. Automation risks, it will be little bit minimum रहेगा क्योंकि tools will be automated, but manpower जो स्पेशलिस्ट जो काम करेगा, that tools cannot do that. That means investigating, judgment and response, those things can be done by humans only. ये हो गया आपका सेकेंड कैरियर क्लस्टर. थर्ड कैरियर क्लस्टर आपका फेवरेट है, मेरा भी फेवरेट है. दैट इज हेल्थ केयर, बायोटेक और बायो इन्फॉर्मेटिक्स. बेस्ट रोल्स क्या रहेगा? बायोटेक साइंटिस्ट रहेगा, क्लिनिकल रिसर्च एनालिस्ट रहेगा, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट रहेगा, एंड ड्रग डिस्कवरी एनालिस्ट रहेगा, ऑफिसर्स रहेगा, ऐसे ही रहेगा. सम लाइक अगर मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो बायो प्रोसेस इंजीनियर्स रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग रहेगा, सेल्स रहेगा. ऑर्गेनाइजेशंस में अगर रहेगा बायो प्रोसेस इंजीनियर, मैन्युफैक्चरिंग, ये सब रोल्स रहेगा. व्हाई it will be in demand? Because India's bioeconomy is actually improving, actually increasing. If you see, it was actually $10 billion in 2014. No, it was 2004. By 2014, no, sorry, it was 10 billion by 2014. Now it is 165 billion in 2024. And it will grow up to $300 billion by 2030. Globally, healthcare and roles are in increase due to increase in elderly people. And
why it is increasing, elderly people plus mental health, healthcare, medical services, ये सब increase होने जा रहा है. एंड सुटेबल एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगा, जैसे आपका PCB और PCMB. यू कैन डू गो फॉर योर बायोटेक्नोलॉजी कोर्स, BTech बायोटेक्नोलॉजी और BSc बायोटेक्नोलॉजी, MSc बायोटेक्नोलॉजी एंड और अदर कोर्सेज दैट इज योर मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट और नर्सेस. दिस ऑलरेडी हैव मेड ए वीडियो दैट ऑल्सो यू कैन सी. स्किल लेवल रहेगा वही, जेनेटिक्स रहेगा, मोलिकुलर बायोलॉजी रहेगा, bioinformatics tools, how to use the bioinformatic tools, and regulatory affairs knowledge क्या है आपका, data analysis knowledge क्या है, project small projects what you can do, DNA sequencing कर सकते हैं आप, bioinformatics mini projects कर सकते हैं, genomic data analysis कर सकते हैं. These things you can show in your GitHub platform. And indicative salary it is a bit low because it is growing very slow in India, so it is around 3 to 8 lakhs per annum. सो आज का ये 3 जो कैरियर क्लस्टर हो गया. फर्स्ट था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, दैट इज ऑन IT डोमेन. सेकेंड ऑल्सो इन IT डोमेन था साइबर सिक्योरिटी और योर ट्रस्ट, डिजिटल ट्रस्ट. थर्ड वन इज फ्रॉम फॉर बायोलॉजी डोमेन और बायोटेक्नोलॉजी डोमेन, हेल्थ केयर डोमेन, हेल्थ केयर, बायोटेक्नोलॉजी एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स. Next we'll see next 3 clusters we'll see my next video. So that's all for today. If you have any doubt you can ask me. All the love, all the power.